Hey, what's up, guys? Welcome back to my channel. Hope you are doing well and great. Yes, I'm here after 3 months to give a review of a electric vehicle which is a hot selling in India. It's the Tata Nexon EV. So here we have Mr. Sonu, the owner of Tata Nexon EV. Hi. So I guess you have purchased this vehicle just 1 month back. I have taken it on 22nd June. 22nd June. Yeah. So hardly a month old. Hardly a month. Yeah, it's almost somewhere around 25 days. Yeah, and this is not the top variant, right? It is a second variant. This is the second variant, XZ Plus. XZ Plus. Yeah. So here it is, So the Tata Nexon, and let's sit inside and discuss more. sure. So entering the door is simple. We also can operate through key, and there is a hands-free button over there. So the door, as you can see, can be opened wide. So entering the car is very easy. So this third gives the confidence that you are in a safe car. So interior of the car is same as you find in the petrol Nexon. This is how the vehicle starts. The welcome screen is over here. So there's a push button, keyless entry. Just we have to place a key over here, and the vehicle is on, and I don't feel it. That's the fun part. And now he has put on the AC. सिर्फ AC का साउंड हल्का सा आ रहा है ब्लोअर का, उसके अलावा और कोई आवाज़ नहीं है. So we'll speak both in Hindi and English. Okay. So coming to the steering. So the basic steering controls are there. The volume up and down call, and call, answer and cut. Horns are placed on the sides. ये किस लिए? These are for example. For the MID. For the MID, this is how the MID looks. So you can see a beautiful MID of the Tata Nexon EV. And here the charge is showing 42%. So he has been to work and he came around here and in Patanthatta to specially meet me and give me a review for the car. And this is how the touchscreen infotainment system. So this has Android Auto and Apple CarPlay. And again you will find the same controls over there in Nexon. Automatic climate control, and the volume button over here, the AC vents, and you have a piano black finish over here. It's quite silent, means I do have a petrol vehicle with me, and I can feel that this is silent. So the future is electric. So you have automatic folding mirrors. The locks are the basic which you get in all Tata cars. You have a 8-speaker system of Harman. Yeah, Harman. So 8-speaker system of Harman, and this is, you have a 12-watt charging socket over here and a USB charging cable. You can place it over here. Ample storage, you can find it everywhere. So here you have a mesh over here with the Tata logo, and this is the controls of the gear. Yeah. So you don't have a gear in this. This is completely automatic. So here it's in neutral. The N symbol, D is for drive, R is for reverse, and S for sports mode. We do have a manual handbrake system over here, and here also if you can see there's ample storage. So this extends. ये वाला अगर उठा दिए तो so storage is been taken care very nicely in the Tata. So this is the armrest, this rest over here, and this is a door you can push here. So this gives a privacy and ample leg room. So I'm 5'10", comfortably sitting in the car. The seats are very cushiony, and it's much more roomier from here. So let's go to the back and see how it is. So I'm here at the rear seat. You don't get adjustable headrest, but the cushioning of the seats are great. You have ample thigh support. This is adjusted as per Sonu's height. Sonu, आपका height क्या है? मेरा 5'7" है. 5'7" के हाइट के सब ये एडजस्टेड है. सो मुझे बराबर लेग रूम है, तो मैं अगर इसको एडजस्ट किया तो स्टिल अकॉर्डिंग टू माई हाइट स्टिल देयर इज एम्पल लेग रूम. Comfortably 4 people and a kid
5 पीपल भी बैठ सकते हैं, बट अगर मेरे जैसे हेल्दी है तो सिर्फ 4 पीपल ही बैठ सकते हैं. सो यू हैव rear AC vents over here. So there is a small hump. It's not that big, so comfortably a child can sit over here. And there's again storage space over here for the bottles. We have speakers. The tire size is R16 215 by 60, and this is how the diamond cut alloy wheels look. The tire is of MRF. Coming to the back, there's LED lights, but again the bulbs are visible from here, so these are indicator lights, and the reverse lights are all halogen. And if you open the boot from here, this is how it looks. So this is how the charging port looks, connecting aspirations by Tata Motors. This is, so Sonu, tell me about this. Why? Because I don't have any idea. इसके बारे में बताइए. से बेसिकली ये ना अपने घर पे अगर 15 एम्प्स का चार्जिंग सॉकेट रहे ना तो वो काफ़ी है. लाइक फॉर एग्जांपल वॉशिंग मशीन का या एसी का, क्योंकि तो इसका ये आप देख सकते हैं, तो एसी के प्लग में आराम से बैठ जाएगा. ये आराम से बैठ जाएगा. और बेसिकली मैंने क्या, अभी मेरे को आई यूजुअली गो टू माय नेटिव ओट्टापालम एंड ऑल, सो वहाँ पे भी चार्जिंग के लिए फर्स्ट एंड फॉरमोस्ट क्या है, ऑलरेडी टाटा पीपल हैव इंस्टॉल्ड दिस चार्जिंग सिस्टम एट माय होम इन एर्नाकुलम. So when I go out, I have already made a charging that's great. This is port which is almost 3 meters. Yeah. This will be helpful. Yeah, this will be helpful because plug point थोड़ा कनेक्ट कर सके. Basically घर में अगर 15 amps का plug है तो that's more so than there's enough. ample boot space over here. You can see holders over here. There's also a light, so रात में भी अगर आपको लगेज वगेज लगाना है तो there's visibility. यहाँ पे बैग्स, 4 बैग्स लटका सकते हैं. So स्पेयर टायर जो है वो भी है यहाँ पे. ये भी MRF का दिया हुआ है. एंड दिस इज द सरप्राइजिंग थिंग इज दिस इज ऑल्सो R16, जो कि हमेशा गाड़ी में होता नहीं है. टायर छोटे साइज़ के देते हैं, आपको तो सब 16 इंच व्हील्स दिए. दैट्स गुड फ्रॉम टाटा मोटर्स. और ये कम्प्लीटली स्प्लिट होता है ना. So completely split, तो आपको if you want to load more luggage, you can load it in the car. I'm in love with this color. This is elegant. So this is how the car looks, and this is where we do the charging. सोनू जगह खोल देना. So this is open. So mostly मुझे तो आदत है ये खुलते ही पेट्रोल या डीजल फिल करने का, and this is different. So this is the normal one which we can do charging from home. जो अडाप्टर आपको वहाँ दिखाया गया है, ये वाला अडाप्टर इसमें लग जाता है. एक बार लगा के दिखा देना. तो ये वाला जो घर पे चार्ज करने का है, हाँ. ठीक है. तो ये वाला जस्ट ऐसा फिट करके you have to make sure that this is completely in. बस. Yeah, that's enough. Is for the fast charging, right? Fast charging वाला है ना, जो कि आपको चार्जिंग के लिए. हाँ, तो ये आपको टाटा के शोरूम में है एर्नाकुलम में. और हाँ, टाटा के शोरूम में भी, और KSC भी जो यहाँ पे है वो लोग भी प्रोवाइड कर रहे हैं. एंड दे विल बी मोर चार्जिंग स्टेशंस इन फ्यूचर इन केरला टू. तो ये ऐसे लगा देना. ये AC का है, यू कैन सी ओवर हियर, दिस इज AC एंड दिस इज DC. ये अंदर ऐसे लगा देंगे एंड यू कैन क्लोज इट. दैट्स इट. एंड एक फुल चार्ज में सुनो कितने किलोमीटर चलता है? एक फुल चार्ज में 250 किलोमीटर मिनिमम मिल रहा है मेरे को अभी फ़िलहाल. तो अभी फ़िलहाल. और अभी तक ये गाड़ी कितना चला है? अभी फ्रॉम इन पास्ट 25 डेज मैंने 2300 चला है. 300 किलोमीटर चला हुआ है. सो ऑन एन एवरेज पर डे 100 किलोमीटर चला रहा हूँ. ऑन एन एवरेज 100 किलोमीटर. ये मोस्टली आप आपके वर्क पे यूज़ करते हो? वर्क पे यूज़ कर रहा हूँ क्योंकि मेरे को फ्रीक्वेंट ट्रैवलिंग है. हाँ, तो इसलिए मैंने जो डेली ट्रैवलिंग करते हैं और पेट्रोल आपको पता है हियर इन केरला दैट टू एट माय प्लेस इट्स 102 पॉइंट चेंज कुछ है. बाकी आपके सिटी में 105 110 भी होगा. व्हाट वाज द मेन रीज़न फॉर यू टू बाय टाटा नेक्सॉन? मेन रीज़न फॉर मी, या ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था? ये नहीं, दिस वाज माय फर्स्ट ऑप्शन. ये वाला ही मेरा फर्स्ट ऑप्शन था क्योंकि प्रॉब्लम ये था कि पेट्रोल का प्राइस अभी रिसेंटली बहुत बढ़ रहा है. ठीक है. अगर मैं पेट्रोल के लिए जाऊंगा तो ऑब्वियसली डे पेट्रोल चार्जेस अलग सा. फॉर एग्जांपल अगर मैं रफली आप बोल रहे हैं आप 100 किलोमीटर डेली घूमते हो? 100 किलोमीटर डेली घूम रहा हूँ. तो 100 किलोमीटर के लिए मेरे को मिनिमम 400 या 500 रुपये चाहिए. हाँ, वेरास इसमें मुझे क्या है ऑलमोस्ट 180 रुपीज़ में काम हो जाता है. हाँ, ठीक है. सो सोनू इज अ रीजनल मैनेजर. हाँ,
company and he has to travel a lot, so 100 किलोमीटर तो डेली का घूमते ही हैं. So that was one of the main reason you bought an EV. Yeah. और EV में भी ये फर्स्ट ऑप्शन था. हाँ या ये टाटा नेक्सॉन ही फर्स्ट ऑप्शन था. MG ZS EV भी है और Hyundai का कोना भी Hyundai का कोना भी है, बट वो थोड़ा बहुत एक्सपेंसिव है. तो आई थॉट दिस वुड बी अफोर्डेबल एंड 250 रेंज इज एडिक्वेट फॉर मी. जाने आने के लिए सब काफ़ी है. ओके, एंड यू आर सेइंग दैट ऑन पैरेलल में स्ट्रेट रोड्स में आपको 250 दे रहा है. अगर कुछ चढ़ाव वड़ाव है तो थोड़ा कम होता है ना. सी अभी आज मैं मिनिमम 280 किलोमीटर्स का दिखा रहा है मेरे को माइलेज, लेकिन जब चढ़ाव आता है ना तो ऑलमोस्ट थोड़ा वेरिएशन रहता है. 10 किलोमीटर्स तो कम मिलेगा क्योंकि ऑब्वियसली पावर ज़्यादा खींचता है. हाँ. तो उसमें थोड़ा कम मिलेगा. 10 किलोमीटर का वेरिएशन रहेगा, कम रहेगा. सो लेट्स गेट इनसाइड एंड टॉक. सो सोनू, ये आपका फर्स्ट ऑप्शन था. हाँ, ये फर्स्ट ऑप्शन कार लेने के लिए. हाँ. कोई पेट्रोल गाड़ी नहीं. पेट्रोल गाड़ी मेरे को अभी नहीं चाहिए क्योंकि एक तो पेट्रोल का अफोर्डेबिलिटी ऑलमोस्ट पेट्रोल प्राइसेस टू हाई नाउ. सो वो सोच के मैंने ईवी के लिए ऑप्ट किया था एंड फ्यूचर इज इलेक्ट्रिक. या डेफिनेटली. सो दैट्स अ वेरी गुड ऑप्शन. और आप को रफली अभी ऑलमोस्ट एक मंथ होने जा रहा है. हाँ. तो आपको कितना पावर बिल आ रहा है सोनू अभी? पावर बिल मेरे को महीने का देखिए, पिछले महीना तो एक 1100 रुपीज़ आया था. ठीक है, उसमें मैंने एक 5 बारी इलेक्ट्रिक चार्जिंग किया. नॉर्मली कितना आता था आपको? नॉर्मली एक 700 आता था. ये 2 महीने का है. ये 2 महीने का करंट बिल है, इलेक्ट्रिसिटी बिल है. ओके. एंड उसमें मैंने 5 बार चार्ज किया क्योंकि आई गॉट इट समवेयर अराउंड जून 22nd. एंड इलेक्ट्रिसिटी बिल वाज जनरेटेड समवेयर अराउंड जुलाई 7th. ओके. तो इट्स समवेयर एक 15-20 दिन का बिल है, 15 दिन का बिल है. तो अगर वो हिसाब से देखे तो आई वुड बी गेटिंग समवेयर अराउंड 4,500 का इलेक्ट्रिसिटी बिल रहेगा. ठीक है. अगर उसमें 500 रुपये या 600 रुपये हाउस कंजम्पशन का भी ले माइनस कर दिया तो ऑलमोस्ट 3,800 में मेरे को 2 महीने का. 2 महीने का वो भी 2 महीने का. आप सोच के देखिए, अगर आपको पेट्रोल गाड़ी होगा तो हर दिन का मिनिमम, अगर जब सोनू के यूसेज के हिसाब से 500 से 600 का पेट्रोल डले तो महीने का कितना होगा वो. हाँ. सोच के देखिए. आप 20 डेज का भी है, 500 रुपये का भी कैलकुलेट कर रहे थे, वही 10,000 के ऊपर जा रहा है. इजीली 10,000. क्योंकि तो 15,000 मेरे ख्याल से अगर पेट्रोल भरेंगे, अगर सोनू के जैसे लोग, आप लोग भी 100 किलोमीटर्स या 90 किलोमीटर्स पर डे यूज़ कर रहे हो तो आपको पेट्रोल इतना लग जाएगा. बल्कि यहाँ पे सोनू को इट्स हार्डली लाइक 10% ऑफ दैट, 10% ऑफ दैट. वो भी 2 महीने का बोल रहे थे. 4,000 अगर महीने का ले लिए तो 2,000 लग गया आपको. बस दैट्स अ बेस्ट पार्ट. एंड आई इवन फील लाइक इनिशियल पेमेंट के हेसिटेट होके बहुत सारे लोग इलेक्ट्रिक व्हीकल्स लेना नहीं चाहते हैं. हाँ. और एक्सक्यूज़ेस क्या बनाते हैं कि अरे अगर अपने को इमरजेंसी कहीं जाना होगा. इतना इमरजेंसी किसी को होता नहीं है, पहली बात. एंड वी डू एवरीथिंग ऑन प्लानिंग नाउअडेज. कहीं भी जाना है तो अपना प्लानिंग रहता है. तो उसके बीच में अपने घर पे तो गाड़ी पड़ा हुआ है तो वी कैन चार्ज. एंड दिस आई कैन सी द बेस्ट पार्ट. बहुत सारी गाड़ियों में, हाई एंड गाड़ियों में होता है शायद. हियर यू कैन सी द स्टीयरिंग व्हील अलाइनमेंट. तो आपको आपका स्टीयरिंग सही है या नहीं, जैसे ही आप गाड़ी में चलते हैं तो अगर ये घुमा हुआ रहता है ऐसे तो शायद आपका ध्यान नहीं जाता है और वैसे ही आप स्टार्ट में आगे बढ़ते हैं तो दैट्स अ प्रॉब्लम. सो हियर इट डिस्प्लेस ओवर हियर लाइक योर स्टीयरिंग इज नॉट अलाइन प्रॉपर्ली. यू शुड अलाइन इट. दैट्स द बेस्ट पार्ट. आपको कुछ लैग इसमें महसूस हुआ कि ये टच स्क्रीन इंफोटेनमेंट सिस्टम में कुछ लैग जैसा? हैव यू यूज एंड्रॉइड ऑटो कनेक्ट करके? हाँ, मैंने कनेक्ट किया है. ब्लूटूथ ऐप्स ज़्यादा यूज़ नहीं किया मैंने. नहीं. आपके एंड्रॉइड ऑटो में केबल कनेक्ट करके इससे एंड्रॉइड ऑटो चलाए हैं क्या? नहीं, मैंने वो अभी तक यूज़ नहीं किया. अच्छा. तो नॉर्मली मैं या तो रेडियो सुनता हूँ या तो मोबाइल चार्जिंग. ऐसे टच में तो मुझे कुछ लैग दिखाई नहीं दे रहा इसमें. सो दिस इज ग्रेट. सो वाई बिकॉज मेरे पास टियागो है. सो जब मैं मैप्स लगाता हूँ तो ठीक ठाक ही चलता, लेकिन बीच में 1-2 कॉल आ गए तो अगेन वो मैप्स में एक 1-2 मिनट्स का मुझे एक फ्लक्चुएशन दिखाता है कि पीछे चल रहा है. तो मेरे ख्याल से सेकंड सर्विस भी हुआ है, बट आई डोंट थिंक सो दे हैव अपडेटेड द सॉफ्टवेयर इन माय कार. बाकी ये तो हारमन का है, मेरे इसमें भी हारमन का ही लगा हुआ है. एक बार रिवर्स का लगा दीजिए. रिवर्स लगे विल शो हाउ यू फील अबाउट द रिवर्स कैमरा. क्लैरिटी कैसा लगा? बेसिक है या क्लियर है? नहीं, बहुत क्लियर है. ठीक है. एंड यू आल्सो हैव गॉट पार्किंग सेंसर्स है. हाँ, पार्किंग सेंसर्स, रिवर्स पार्किंग सेंसर्स. जब ऑलमोस्ट इफ द सेंसर, अगर वो पार्किंग सेंसर के पास कुछ भी एक ये आया ना, तो इट विल मेक अ लाउड साउंड. हाँ, जैसे अभी आ गया रोक. देखें
मोहल्ला भयंकर So साउंड it's very loud. है, वेरी लाउड साउंड। Yeah, that I can see. So this is a good feature. So मैं कह रहा था कि बहुत सारे लोग इनिशियल पेमेंट सोच के, तो ये आपको ऑन रोड कितना पड़ा सोनू? ऑन रोड एक्चुअली ये सेकेंड वेरिएंट 14.99 लाख है, ठीक है। केरला में आपको कोई सब्सिडी या कोई टैक्स बेनिफिट वैसा कुछ नहीं है, ठीक है, कुछ नहीं है, okay. कुछ नहीं है कंपेयर टू दिल्ली गवर्नमेंट वेर यू विल गाड़ी आपको 14.99 में मिल जाएगा। हाँ। लेकिन केरला में टैक्स इंश्योरेंस सारा मिला के मेरे को समवेयर अराउंड 16.95 रफली अराउंड 17 लाख। और आपने कुछ एक्सेसरीज लिया है? नहीं, मैंने कुछ नहीं लिया, कोई accessories नहीं लिया? ये काफी था मेरे लिए। हाँ। मैटिंग भी नहीं कराया? मैटिंग भी मैंने कुछ नहीं किया। मैटिंग व्हाट आई सजेस्ट इज दैट यू डू इट फ्रॉम आउटसाइड। आपको 1000 रुपये में द बेस्ट मैटिंग करके दे देंगे, वो कि शोरूम में आपको वही 3000 में चार्ज करते हैं। हाँ। सो वेन एवर यू हैव टाइम, वाई बिकॉज यू आर अ बिजी मैन, यू कीप ऑन ट्रैवलिंग, सो जब भी आपको टाइम मिले तो मैटिंग करा लीजिए, क्योंकि बारिश के मौसम में यू कैन सी डस्ट वस्ट पकड़ लेता है, कीचड़ लग गया तो आपको साफ़ करने में बहुत टाइम लगेगा। So that's the best part of matting. बाकी what you feel could have been better? As of now I don't have any complaints. एक है कि रेंज के मामले में फॉर अभी कहीं हमको तो what was the promised range by Tata? प्रॉमिस रेंज वो लोग जो बता रहे हैं 312 है। 312 मैंने भी देखा 312। 312 किसी को मिलता नहीं है, बहुत कम, वो पता नहीं कैसा है। There have been a lot of videos on YouTube complaining about the range. 312 का क्लेम है, 312 का क्लेम नहीं दे रहा है, बट डिपेंड्स ऑन द ड्राइविंग कंडीशन। बट स्टिल आपको क्या लगता है, आपको कितना मिल रहा है? मेरे को ऑन एन एवरेज 250 to 260 मिल रहा है। 250 तो 260 भी नहीं, हम 250 लेंगे, 250। एंड आप स्पीड मेंटेन करते हैं 60 विदिन 60? मैं 40 to 70 के रेंज में। सिटी लिमिट्स में तो हम 40 या 50 क्रॉस नहीं कर सकते। Whenever you are on highway, you go up to 60, 80 also। 80 के अंदर, हाँ, तो 80 के अंदर whenever need, or else you drive on the suggested range 60 के आप में। अगर आपका पेट्रोल गाड़ी भी आप 60, 65 या 70 के अंदर चलाते हैं, you will get a good mileage। और आप रेव ज़्यादा करते हैं, चाहे वो इलेक्ट्रिक हो या पेट्रोल हो, the mileage differs। बाकी what you feel the safety के मामले में आपको कैसा लगा? सेफ्टी के मामले में तो it is too good. It is the best car in India as far। You were sharing an incident of recently कुछ actually recently I was charging my vehicle at Palarivattam charging station। तो it was raining heavily that day। तो ऊपर से एक बड़ा सा ये झाड़ का जो ब्रांच है ना, वो टूट के आके इस पे गिरा, बॉनेट पे गिरा। मैं एक्चुअली तुरंत डर गया था, लेकिन वापस ये कंप्लीट पहुंचने के बाद देखे तो नॉट इवन ए सिंगल स्क्रैच। Not even a single scratch. That shows the quality of Tata. बाकी टाटा की कार्स के क्वालिटी never they'll compromise. Build quality excellent है. The best car in safety is provided by Tata Motors, and the live example is that Sonu is sharing feedback. आगे एक बड़ा सा ब्रांच बारिश के टाइम में तेज हवा चल रहा था, वो गिरा बोनेट में, and I'll show you the bonnet. It's clean, not even a scratch. So you're happy with it? I'm very much happy with it. So you feel like you have पैसा वसूल, एकदम पैसा वसूल। और सर्विस इंटरवल्स कैसे हैं इसके? सर्विस इंटरवल्स फिलहाल तो एक्चुअली टाटा शोरूम वालों ने मेरे को क्लियर कट एक्सप्लेन नहीं किया, क्योंकि लॉकडाउन के कारण दे आर ओपनिंग इट ऑन ऑल्टरनेट डेज। बट उन्होंने कहा मुझे कि एक 4000 किलोमीटर्स में दे विल कीप मी पोस्टेड। सर्विस के ऐप में भी देख सकते हो, टाटा के ऐप में दे विल शो सर्विस अगर नजदीक आए तो। टाटा का कस्टमर सर्विस कैसा लगा? लाइक व्हेन यू अप्रोच टाटा मोटर्स इन द शोरूम, कैसा था उनका रिस्पॉन्स? टाटा के मामले में मेरे को वो एक ये लगा कि कस्टमर सपोर्ट दे हैव टू improve a lot, because क्या है, now they are started selling premium cars. Premium cars के सेगमेंट में ही आते हैं। They are not selling any Indica और क्या बोलते हैं इंडिगो कार्स, एंड ऑल्सो दे हैव हैरियर है, उनके पास सफारी है, नेक्सॉन है। सो दे हैव ऑल रेंज ऑफ कस्टमर्स। और ये सब अगर आपको 17 लाख लगा रहे हैं, यू शुड गिव अ प्रीमियम एक्सपीरियंस टू द कस्टमर्स। दैट्स व्हाट आई कीप ऑन टेलिंग। देयर इज अ लॉट ऑफ देयर हैज बीन अ लॉट ऑफ चेंजेस इन टाटा, बट स्टिल कस्टमर सर्विस, जब आप इतना पैसा ले रहे हो तो आपको कस्टमर का देखभाल भी, अगर दे एनी क्वेरी और एनीथिंग इज देयर, एज ही वाज सेइंग, योर एम्प्लॉयज शुड बी वेल अवेयर ऑफ द फीचर्स, और नॉट द फीचर्स, द सर्विस इंटरवल्स अगर उनको ठीक से अगर एक्सप्लेन किया होता, इवन इफ लॉकडाउन है या अल्टरनेटिव्स खुल रहा है, स्टिल दे हैव टाइम। वो मिनिमम चीज़ें हैं जो आपको अपने कस्टमर्स को, भाई ही हैज़ इन्वेस्टेड 17 lakhs ऑन अ कार, तो आपको ये सब क्लियर कट बनाना है। तो 17 लाख अगर आप कोई पेट्रोल गाड़ी में लगाते हैं तो आपको वो प्रीमियम फील देना ही है। बाकी कहीं शोरूम में गए
and you buy a petrol car, तो वो अगर आप मारुति का ले लिया, they have Nexa, so वो रेंज में लेके जाना है. So सही. that's what I even feel, क्योंकि बहुत सारे टाटा के शोरूम्स स्टिल उनके वो ओल्ड स्टाइल ऑफ ऑपरेटिंग में चल रहा है. दे मोस्ट ऑफ द शोरूम्स दे हैव चेंज्ड द अप्रोच, बहुत सारा अपना इंटीरियर्स में कॉन्सेंट्रेट किया है, बट स्टिल देयर इज अ लॉट ऑफ इम्प्रूवमेंट. लेकिन ओनली थिंग इज यही शिकायत है कि दे हैव टू कीप ए चेक ऑन देयर कस्टमर्स कि कैसा चल रहा है, क्या है फीडबैक. कुछ नहीं, अगर कुछ प्रॉब्लम भी आए तो एक बंदा दूसरे बंदे को रूट कर देता है. नोबडी इज देयर टू फाइंड आउट कि whether the problem is addressed or not. एक 2-3 दिन के बाद कॉल आएगा कि आपने शोरूम में कॉल किया था, प्रॉब्लम क्या है. अच्छा. तो वो एक so there is a communication gap between their own people, their own executives and management. Yeah, they have so to that take care. need to be changed. Yeah. बाकी मामले में तो आपको you are fully satisfied, I guess. You are happy with Nexon, and I do feel this is the right choice. Sonu is my friend, like we have been friends since 14 years, so I even suggested him, if you want to go for electric, Tata is the best. क्योंकि मेरा भी पहले टाटा के बारे में ये अलग ही एक डायलेमा था कि टाटा की गाड़ियाँ चाहिए है नहीं है, बट वंस आई ड्रोव द कार I was confident that, because I was only thinking that Polo is the safest car, Volkswagen makes the safest car, तो मुझे वही था. लेकिन टाटा की गाड़ियों में within this 3-4 years they have changed a lot, and this is the future of the motor industry, electric vehicles. So guys, if you want to save money, और बहुत सारे स्टेट में सब्सिडी भी मिलता है, तो आपको अब सब्सिडी भी मिल जाएगा उसमें. and I feel in state of Kerala also they'll give subsidy to the customers. Hope you guys like this video and find it informative. I mostly have covered everything about the Nexon EV, the ownership experience, and Sonu will be posting me about his further experience with his new vehicle. All the best, Sonu, for your new car. Thank you. Drive safe. Thank you. Thanks a lot.